for this recordings, you can go through my channel. Do you know the link of the channel already? Yes, sir. So whatever the problems or recordings we are uploading now, that is available after this class. Also, after half an hour, you can see that recording. So suppose the x0, x1, x2, x3, x4 corresponding y0, y1, y2, y3, y4 are the set of values. So then how to use the Lagrange's formula if we have this data? So look at that. Lagrange's formula is y of x, yani ki f of x is equal to. There is a logic also behind this, how to write it. Look at that. First term is x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 into x minus x4 divided by x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus x3 x0 minus x4 into y0. Look at what is the logic behind it. न्यूमरेटर में कहीं भी x0 नहीं है, देखिए है, नहीं है ना, न्यूमरेटर में कहीं भी x0 Yes, नहीं है, sir. डिनोमिनेटर के पूरे टर्म्स x0 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग y0 आ रहा. यही लॉजिक को यूज करके आगे बढ़ना है. x minus x1 x minus x2 x minus x3 x minus x4 divided by x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus x3 x0 minus x4 into y0. When you are writing the next term now, next term will be x minus x0. अब इसमें देखो न्यूमरेटर में x0 वाला टर्म नहीं था, अब यहाँ पर x1 वाला टर्म नहीं आएगा. x minus, it will be no x1 term, x minus x2 x minus x3 x minus x4, and all the terms here in the first term subtracting from x0, here all the terms subtracting from x1, x1 minus x0 x1 minus x2 x1 minus x3 x1 minus x4 into y1 plus. Next, tell me the logic. What? Look at that. In the first term, we don't have numerator x0 term. Second term, numerator में x1 टर्म नहीं है. थर्ड टर्म में न्यूमरेटर में x2 टर्म नहीं रहता और डिनोमिनेटर में पूरे x2 में से माइनस होते. So then how it will be? Can you tell me? X minus x0 into x minus x1, no x2 terms, x minus x3 into x minus x4 divided by all the terms will be subtracting from x2. x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x2 नहीं आएगा, x2 minus x2 बोलते फिर 0 हो जाता. x2 minus x3, 0 वाला पॉसिबिलिटी नहीं लाना कुछ. x2 minus x4 into y2 प्लस. देखिए y0 हो गया, y1 हो गया, y2 भी हो गया, y3 y4 के लिए भी ये टर्म्स को कंटिन्यू करना पड़ा. फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाता नहीं. तो अपने पास Yes, कितने sir. टर्म थे? सॉरी, यहाँ पर ओके. अभी नेक्स्ट टर्म में y3 नहीं आएगा न्यूमरेटर में. x minus x1 x minus x2 x minus x3 will not be here, x minus x4 divided by all the denominator terms will be subtracting from x3, x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2, x3 minus x3 नहीं आता, नहीं तो फिर denominator will become 0, x3 minus x4 into what you will get here, y3 you will get here plus. अब ये लास्ट टर्म है x minus x0. अब ये लास्ट टर्म में न्यूमरेटर में कहीं पर भी x4 नहीं आएगा,
x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 डिवाइडेड बाई पूरे टर्म्स x4 में से सब्ट्रैक्ट होंगे x4 माइनस x0 x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3 into y4 एंड दिस विल बी कंटिन्यू। फॉर्मूले के पीछे जो लॉजिक है वो समझ में आया आपको? जी सर। न्यूमिनेटर में कहीं पर भी x0 नहीं आया तो यहाँ y0 आता और पूरे टर्म्स x0 में से सब्ट्रैक्ट होते। यहाँ पर न्यूमिनेटर में कहीं भी x1 वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पर y1 है और पूरे x1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे। यहाँ पर कहीं भी x2 नहीं है तो यहाँ y2 आ रहा और पूरे y2 x2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे। इसमें कहीं भी x3 नहीं है तो यहाँ y3 आता और पूरे x3 में से सब्ट्रैक्ट होते। यहाँ पर कहीं पर भी x4 नहीं है तो यहाँ y4 आता और पूरे टर्म्स x4 में से सब्ट्रैक्ट होते। ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, यू हैव ए लॉजिक बिहाइंड दिस। अब एक प्रॉब्लम कर लेंगे अपन उसके ऊपर, उसके बाद ये एक क्लास में हो जाता है इंशाल्लाह। So now we have some set of values I will give you. Oh, class 7. Okay, given the values, ये recording upload हो गए. Look at that, some x values are given. Here one question I am doing. X values are, एक काम करेंगे आपको और अच्छे से बताने के लिए टेबल के फॉर्म में ले लेता हूँ इसको। X, this is f of x. 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13, 17। अच्छा एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए इंटरवल डिफरेंस है। देखिए इसमें यहाँ से 5 से लेके 7 तक 2 का डिफरेंस है, 7 से लेके 11 तक देखे तो फिर 4 का डिफरेंस हो जा रहा, फिर यहाँ 2 यहाँ पर 4, मतलब इक्वल इंटरवल नहीं है ये। अंडरस्टैंड? यस सर। लेग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अनइक्वल इंटरवल के लिए काम आता। इक्वल इंटरवल के लिए अपने पास दो फॉर्मूलेज है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। मैं देखा था सिलेबस, आपका सिलेबस में सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला नहीं है, इसलिए आपको सिलेबस देखना चाह रहा था मैं। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला उसमें नहीं है, सो देयर इज नो नीड। वो भी जरा कंफ्यूजन भी था, वो नहीं है तो और अच्छे से। नाउ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर 5 इट इज 150। कैलकुलेटर साथ में रखिए, इट इज रिक्वायर्ड नाउ। 392 7 के लिए, 11 के लिए है 1452, 13 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2366, 17 के लिए है 5202। ओके, तो क्वेश्चन में और आगे बोल रहा है इवॉल्व वेट, इवॉल्व वेट किसकी वैल्यू, एफ ऑफ 9 की वैल्यू, एफ ऑफ 9 यूजिंग यूजिंग Lagrange's formula, Lagrange's फॉर्मूला। Lagrange's फॉर्मूला का मतलब Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। इंटरपोलेशन का मतलब द वैल्यू विच इज लाइक बिटवीन दिस ओनली, इंटरपोलेशन। इंटर मतलब 7 से लेके 11 के बीच में रहती ना 9, तो इसका आंसर भी जो है ना
392 और 1452 के बीच में ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो आपको फार्मूला लिखने का लॉजिक अगर समझ में आया तो मैं वो वैल्यूज लिख के प्रॉब्लम को खत्म कर देता हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ पर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वट एवर द इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन, वी हैव टू राइट दोस इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन में। क्या क्या दिया हुआ है आपको? x0 की वैल्यू इज 5, x1 वैल्यू बोलिए 7, x2 वैल्यू 11, x3 वैल्यू 13, x4 वैल्यू that is 17. Okay. Now corresponding values are y0 value. This is 150. y1 value 392. y2 value 1452. y3 value 2366. y4 value y4 value is 5202. f of 9 आपको फाइंड आउट करना है। f of 9 we have to find out। मतलब अगर आप f of x से कंपेयर करें तो x की वैल्यू होती 9 है ना। x की वैल्यू भी 9 है आपके पास, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से अवेलेबल है। We have to find out f of 9. Now Lagrange's formula we have to write once again. I am writing that formula. There is a logic behind the formula. I told you the logic. एक बार देख लीजिए लॉजिक क्या है। ये फार्मूला है। ओके, न्यूमिनेटर में कहीं पर भी x0 नहीं आ रहा, तो डिनोमिनेटर में पूरे टर्म x0 से सब्ट्रैक्ट करके y0 आ रहे। ठीक है ना, वो याद रखिए। अपन फार्मूला लिखेंगे अभी। बाय बाय Lagrange's formula, by Lagrange's formula y of x is equal to, चलिए come on try to say the answer, x minus x1 x1 into x minus x2 into x minus minus x3 x3 into x minus x minus x4 x4 डिवाइडेड बाय, देखो आपको मैं आसान क्या कर दिया, फॉर्मूले में लॉजिक बता दिया। x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। x3 एक्चुअली लॉजिक रहने से फॉर्मूला इजी बन जाता है। अब आप कौन से लॉजिक से उसको याद करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इजीएस्ट वे में बता दिया। ये हो गया y0 प्लस, अब पूरे टर्म जो है ना, यहाँ पर जैसा कि अभी x0 नहीं आया तो इधर x0 आ गया। अब y1 आता, मतलब कैसा आता, कैसा आता बोलिए, x माइनस x0 इंटू x x1 minus वाला टर्म नहीं आया, x2 x2 वेरी गुड इंटू x x माइनस minus x3 x3 x माइनस x4 डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे टर्म्स x1 में से सब्ट्रैक्ट होंगे, x1 माइनस x0, x1 माइनस x1 हाई नहीं सकता, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 इंटू x1 माइनस x4 इंटू y1 प्लस, और तीन टर्म्स लिखना है। ओके, लिखते जाएंगे अपन, टाइम लगेगा नो प्रॉब्लम, बट दिस प्रॉब्लम विल बिकम इजी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए प्रॉब्लम इजी हो जाए। x माइनस x0, अब क्या नहीं आएंगे बोलिए, x2 वाला टर्म इसमें नहीं आएगा, x माइनस x1, x minus x1 x माइनस x3, x3 x माइनस minus x4 x4 डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे टर्म x2 में से सब्ट्रैक्ट होंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। 2011 के बाद लेग्रांजेस फार्मूला 2024 में पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब एग्जैक्टली 13 ईयर्स के बाद सेम फार्मूले, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, 13 ईयर्स के बाद फिर से ये
लेग्रांजेस फार्मूला हो रहा 13 years का गैप आ into y2 plus next term what is the possible term tell me x minus अभी देखिए x2 इसमें नहीं आएगा अब यहाँ क्या नहीं आएगा x3 वाला टर्म नहीं आएगा 6 3 x yes minus x1 x minus x2 x minus x4 no x4 more x3 here divided by x3 में से पूरे सब टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे x3 minus x0 x3 3 minus minus x1 x1 x3 x3 minus minus x2 x3 x3 minus x3 तो नहीं आता x3 minus x4 वही 3 प्लस x minus x0 x minus x1 अब इसमें कौन सा टर्म मिसिंग रहेगा बोले x4 यस x3 तक आएगा x4 नहीं आता उसमें and all the denominator term will be subtracted from x4 x4 minus x0 x4 minus x1 x4 minus x2 x4 minus x3 तक ही आएगी और x4 minus x4 नहीं आता that is y4 that's it plus and so on. That's it. Now put the values okay f of x और y of x दोनों सेम रहता तो f of 9 पे अपन उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं x value is 9 so if you put x value is 9 this is 9 minus हाँ एक काम करेंगे अपन इसको बाद में फिलअप करेंगे पूरों को 9 माइनस क्योंकि x 9 है ना अपने पास ऑलरेडी मैं आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम करने का x0 की वैल्यू यहाँ पर है अपनी कौन सी है 5 है तो पूरे 5 में से सब्ट्रैक्ट होते हैं 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस and y0 y0 value is 150 into 150 प्लस अब ये पूरे टर्म फिर से 9 में से सब्ट्रैक्ट होंगे 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस डिनोमिनेटर x1 व्हाट इज x1 7 पूरे 7 में से सब्ट्रैक्ट होते 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस और यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 392 प्लस फिर से 9 माइनस 4 बार लिखना है 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस and that is फिर 7 के बाद क्या था ऊपर 11 11 में से सब्ट्रैक्ट होता है ऊपर एक दो तीन चार इंटू उसके साथ में 1452 है जगह नहीं है इसलिए इधर लिख उसके बाद प्लस फिर 9 माइनस 4 बार 2 3 4 डिवाइडेड बाई 11 के बाद 13 है वहां पर पूरे टर्म 13 में से सब्ट्रैक्ट होते हैं 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस समझ में आ रहा लॉजिक इसके पीछे आपको yes sir कि आपको याद करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कितना इजीएस्ट वे में बता सके उतना आपके लिए भी आसान रहता है आप बाईपीसी के स्टूडेंट है
तो जितना ज्यादा आपको लॉजिक बता सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 माइनस, बल्कि ये बाईपीसी के स्टूडेंट के लिए टॉपिक बहुत टफ है, तो टफ चीज़ें दे दिया। मगर क्वेश्चन मैं समझता हूँ ये चार अपन डेटा पॉइंट, 4 पॉइंट्स के लिए आपको एक 2-3 पॉइंट्स के देता हूँ शायद, क्योंकि बाईपीसी के स्टूडेंट को टफ तो देना नहीं चाहिए। पूरे टर्म से 17 से सब्ट्रैक्ट होते हैं। 17 माइनस 17 माइनस 17 माइनस और लास्ट में यहाँ पर आता 5205। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ, उसके बाद आप उसको एक एक टर्म को कैलकुलेट करेंगे। पहले x1 आना, x1 x2 x3 x4। x1 क्या है अपने कने, x1 है 7, x2 है 11, x3 है 13, x4 है 7, 4 कितना 17। देखो यहाँ पीछे है, देखो ऑलरेडी, हाँ यहाँ पर है देखो, आप देख से लिख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में फिर x1 नीचे आ रहा ना, तो सेम आता है 7, 11, 13, 17। अब ये पहला टर्म कैलकुलेट कर लो जब तक मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे तक। फर्स्ट टर्म आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ x1 आता मतलब x0 आता मतलब 5, 11, 13, 17। 5, 11, 13, 17। अब ये स्टार्ट होता फिर से 5, अब 11 नहीं आता शायद, 7, 13, 17, 5, 7, 13, 17। नेक्स्ट 5, 7, 11, 17, 5, 7, 11, 17, 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13। फर्स्ट हम कैलकुलेट करें, नहीं सर, कर करिए। फर्स्ट हम कैलकुलेट करके आंसर बोलिए। फर्स्ट हम कैलकुलेट करके आंसर बोलिए। क्या है फर्स्ट? पूरे का पूरा कैलकुलेटर में ऐसा फॉर्मेट बना देना, फ्रैक्शन ओपन करके लेफ्ट साइड में स्टार्ट कैलसी के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म रहता, फ्रैक्शन फॉर्म ओपन करके 9-7, 9-7, 9-13, 9-17 ये पूरा करके इंटू 150 करके मेरे को आंसर बोलो। और वो आंसर जो है ना अपनी ये रेंज के बीच में होना है। फॉर्म 9 कर रहे हैं अपनो 392 और 1450 माइनस 16.667। पॉइंट में ना फ्रैक्शन में बोली, फ्रैक्शन में कितना आंसर आ रहा वो बोली। एसडी करे तो फ्रैक्शन में। एक कौन रो रहा है? एक मिनट मैं अभी आ रहा हूँ जी, जब तक कैलकुलेट कर रहा हूँ पूरे वैल्यू स्क्रीन बताता हूँ अच्छा होगा।
minus 50 divided by 3. हेलो। Yes, sir. हाँ बोलिए आंसर फर्स्ट वाला। Minus 50 by 3. हाँ करेक्ट है। वो 150/3 करेक्ट है। आगे का बोलिए। यस अब्दुल बारी, नो साउंड। नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड वाले का। कर रहे सर, एक सेकंड। $3,136 divided by 15. Sir, hello. Hello. हेलो हाँ बोलिए। 3,136 divided by 15. हाँ जल्दी जल्दी करिए दूसरा बोलिए। पूरा करिए जल्दी। Come on, waiting for the next value.
जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 3872 divided बाई by थ्री। 3. चलो जल्दी जल्दी दूसरा करो। ये करेक्ट है। 3872 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, आप कैलकुलेट करो। 2366 डिवाइडेड बाई 3 आया। नेक्स्ट वैल्यू इज 578 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा। अब जरा मेरे को ये पूरों का कैलकुलेशन का आंसर फाइनली इतना बोल दीजिए, खत्म कर देंगे क्लास, जल्दी बोलिए। ये पूरा कैलकुलेशन, द वैल्यू शुड बी बिटवीन 9 है ना, 11 और 13 के बीच में आंसर। नहीं नहीं, 7 और 11 के बीच में। जल्दी करिए जल्दी करिए। 2530 नहीं, divided by 3. हाँ डिवाइड बाई 3 करो। 18 आ रहा। 810 नहीं सर, विल 810 विल बी द आंसर। एक बार आप, 843. नहीं 810 आ रहा, एक बार आप फिर से एक बार चेक कर लो। चेक कर लो, फिर मैं आपको इसका Okay, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भेजा रहा हूँ, आप देख लो। okay, sir.